This call is now being recorded. All right, so अब जो हमारी डिस्कशन है बेसिकली आज की क्लास में वो है सारी इट्स ऑल बेसिकली थ्योरी देयर इज नथिंग कॉन्सेप्चुअल वेरी इजी and we're going to discuss about the how what are the safety precautions that are supposed to be taken when using electricity. All right, and also we're going to look into the uses of static electricity and problems with the static electricity. All right, and so and sorry, I forgot to mention that we're going to look into some of the dangers associated with the mains electricity, and what are the safety precautions that are taken to make it safe. Then, as far as static electricity concerned, so we're going to be discussing about the uses of static electricity and the problems. So let's start off with mains electricity, and let's discuss possible dangers that are associated with it. So the first thing which is mentioned is you should be able to identify the following hazards that increase the chances of severe and possibly fatal electric shocks. All right, so the first one, the first possible hazard is that the cables are frayed. That means, whenever you look at a wire, all right, whenever when you look at a wire, so whatever you see from the outside is basically the insulation. All right, that is the insulation along, that is insulation around the wire that is carrying current. All right, the wires are inside that insulation. What you see from outside is the insulation. Inside that insulation you have very 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 thin wires that carry one of them carry current and the other one is basically the neutral wire. So uh, if the insulation is damaged, so it can expose you to the wire carrying current, and the wire that carries current is what we call as a live wire. All right, current carrying wire, current current carrying wires. All right, and what else? Long cables, as they're more likely to get damaged or trip people up. Then what another possible hazard could be associated with the mains electricity, that is damage to plugs or any insulating casing on any mains operated devices, uh, like this. Have a look at this. So the picture is blurred, but I hope you can see that this is basically a plug which is like broken. All right, the casing of this plug is like broken, and the uh, wires inside this plug are basically exposed. All right, then we have water around electric sockets. All right, if there's a use of water around electric sockets, that could be a possible hazard. All right, and then another possible hazard could be that pushing metal conducting objects into main sockets, usually only a problem with very young children. Like for example, if you have a metal rod, and it's a very thin rod, and on one hand, a child, for example, is holding this metal rod from this end, and it's trying to plug in to the socket, and so that could be a possible hazard, that, and it could be it could be fatal as well. So now you should also know how to wire a 3-pin plug correctly with the different colored wires in the correct places. All right, so this is basically a 3-pin. Now let's also read out that the cable insulation must be firmly gripped by the cable anchor. All right, this is basically what we call as a cable anchor. This is a cable anchor, and it is actually gripping all these three wires. All right, so
there's also a fuse that is, in a 3-pin plug. There's a electrical component called fuse. We're going to in a while I'm going to tell you what is the purpose of fuse. So also there must be the correct fuse fitted according to the type of appliance. All right. So according to the type of appliance to which this 3 plug is connected, a correct fuse must be fitted inside this plug. क्योंकि हर अप्लायंस के अंदर बेसिकली ना फ्यूज क्या होता है? फ्यूज होता है एक बैरियर होता है। क्या होता है? बैरियर होता है। मतलब ये कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट अगर फ्लो करेगी तो उस एक एक लिमिटिंग वैल्यू है करंट की। फॉर एग्जांपल 8 एम्पेयर्स। तो अगर 8 एम्पेयर से कम करंट अगर फ्लो करता है, अगर करंट फ्लो करता है अप टू अ वैल्यू ऑफ 8 एम्पेयर्स या उससे कम, तो एवरीथिंग विल बी ओके, तो कोई मसला नहीं है। बट जैसे ही आपका करंट 8 एम्पेयर से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, सो दिस फ्यूज इज गोइंग टू गेट बर्न, फिर वो बर्न हो जाएगा। ठीक है ना? वो बर्न हो जाएगा, इट्स गोइंग टू ओपन द सर्किट। फिर आपका उससे क्या होगा? सर्किट ओपन हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना? आपका अगर फ्यूज बर्न हो जाएगा ना, तो फिर क्या होगा कि वायर ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। इसे हम ओपन सर्किट भी कहते हैं। सर्किट ओपन हो गया, नाउ देयर वोंट बी एनी फ्लो ऑफ करंट। तो ये बेसिकली इंस्टॉल किया जाता है आपके मेंस जो आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है ना। अब तो खैर ये यूज़ नहीं होता फ्यूज़। जो आपका मेन इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी जो ट्रांसफार्मर से जो आपका करंट इनटू द हाउस होल्ड फ्लो हो रहा होता है, वो मीटर से, आपके इलेक्ट्रिसिटी मीटर से पास होता है। फिर आपने देखा है कि घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मीटर तो बाहर होता है, घरों के अंदर सर्किट ब्रेकर्स लगे होते हैं, तो वो एक सेट ऑफ सर्किट ब्रेकर से पास होता है। समझ रहे हैं ना? सेट ऑफ सर्किट ब्रेकर से पास होता है। तो वो जो सेट ऑफ सर्किट ब्रेकर्स है, पहले उन सर्किट ब्रेकर्स की जगह फ्यूज लगा हुआ करते थे, अब सर्किट ब्रेकर्स लगे होते हैं। पर्पस दोनों का सेम ही है, लेकिन बस ये है कि फ्यूज को जो है ना रिप्लेस करना पड़ता है। सर्किट ब्रेकर्स को आप रिप्लेस नहीं करते, उसमें क्या होता है कि ट्रिप हो जाता है वो। अगर करंट एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा एक्सीड करता है तो फिर आपका सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। ट्रिप होने से क्या होता है कि आपका जो है सर्किट ब्रेक हो जाता है, ओपन हो जाता है सर्किट, फिर करंट फ्लो नहीं करता। तो फिर जहाँ कहीं भी लीकेज है या जो कोई भी वजह है जिसकी वजह से करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, उस वंस वो रेक्टिफाई हो जाए, तो फिर आप उसका जो सर्किट ब्रेकर का स्विच है वो आप दोबारा ऊपर कर देते हैं, दैन इट अलाउज द करंट टू फ्लो। फ्यूज़ में ऐसा नहीं होता। फ्यूज़ में होता है कि इट गेट्स बर्न, फ्यूज़ आपका पूरा का पूरा बर्न नहीं हो जाता है। ठीक है ना? वो जल जाता है, फिर उसको पूरे को रिप्लेस करना पड़ता है एक नए फ्यूज़ के साथ। अगर आपका जो है एक सर्टेन वैल्यू ऑफ, अगर करंट की एक सर्टेन वैल्यू, अगर करंट जो है एक सर्टेन वैल्यू से एक्सीड करता है और फ्यूज़ इंस्टॉल्ड हो, तो फ्यूज़ फिर उस बर्न हो जाता है। तो अब कितना करंट फ्लो होगा जिसके बाद फ्यूज़ आपका बर्न होगा? तो देयर इज़ अ रेटिंग फॉर एवरी फ्यूज़। हर फ्यूज़ की एक रेटिंग होती है। जैसे कि 6 एम्पेयर फ्यूज़ है, इसका मतलब ये है कि आपका जो है फ्यूज़ जो है वो अलाउ करेगा ओनली करंट्स अप टू 6 एम्पेयर टू फ्लो थ्रू इट। अगर अगर जो है 6 एम्पेयर्स से ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा तो फिर आपका फ्यूज़ बर्न हो जाएगा। तो ये जो फ्यूज़ की रेटिंग होती है ना, 6 एम्पेयर फ्यूज़, 5 एम्पेयर फ्यूज़, दिस टेल्स कि ये बेसिकली लिमिटिंग वैल्यू है करंट की, कि इतना करंट अगर फ्लो होगा तो अलाउ करेगा आपका फ्यूज़, या इससे कम। इससे ज़्यादा अगर एक्सीड कर गया करंट तो फिर आपका जो है फ्यूज़ बर्न हो जाएगा, जिसकी वजह से सर्किट ओपन हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा, फिर आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस वजह से ना ये यहाँ पे जो लिखा है ना करेक्ट फ्यूज फिटेड, वो इसलिए लिखा है कि भाई हर अप्लायंस के अंदर, चाहे वो आपका रेफ्रिजरेटर हो, एयर कंडीशन सिस्टम हो, या आपका इलेक्ट्रिक आयरन हो, ठीक है ना, इसके अलावा हीटिंग आयरन हो, माइक्रोवेव ओवन हो, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं हमारे अराउंड अस जो कि हमारे डेली लाइफ में जिनका यूसेज है। तो हर किसी के अंदर जो करंट ड्रॉ होता है ना, उसकी रेटिंग डिफरेंट होती है। तो सबके अंदर जो है जिस रेटिंग का फ्यूज़ लगाया जाता है ना, वो डिफरेंट होता है। ठीक है ना? अगर
लेट सपोज आपका जो है एक फ्यूज है 6 एम्पेयर, उसकी रेटिंग 6 एम्पेयर है, वो आपने इंस्टॉल कर दिया इनटू अ प्लग ऑफ, मतलब एक रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर का जो 3 पिन प्लग है उसमें आपने ये फिट कर दिया 6 एम्पेयर का फ्यूज। अब द थिंग इज कि आपका जो रेफ्रिजरेटर है उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको टर्न ऑन करने के लिए वो जितना करंट ड्रॉ करता है, लेट्स सपोज 8 एम्पेयर है, यानी 8 एम्पेयर करंट तो उसको चाहिए टर्न ऑन होने के लिए। अब आपने फ्यूज फिट किया हुआ 6 एम्पेयर का, उसकी रेटिंग 6 एम्पेयर है, तो इससे क्या होगा कि फिर आपका जो है ना वो टर्न ऑन होगा ही नहीं फ्रिज, क्योंकि बेसिकली जब आपका रेफ्रिजरेटर 8 एम्पेयर करंट ड्रॉ करेगा तो फ्यूज आपका मेल्ट होकर बर्न हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा बेसिकली, इससे सर्किट ओपन हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट फ्यूज आपका इंस्टॉल नहीं हुआ होगा। मतलब इन रेफ्रिजरेटर फिर आपको हायर रेटिंग ऑफ फ्यूज जो है ना वो फिट करना पड़ेगा इनटू अ 3 पिन प्लग, क्योंकि 8 एम्पेयर जो है 8 एम्पेयर जो है करंट वो आपका सेफ है फॉर रेफ्रिजरेटर, दैट्स व्हाई। तो दिस इज हाउ द आइडिया ऑफ फ्यूजेस, ये बेसिकली दिस इज द आइडिया बिहाइंड फ्यूजेस, ठीक है ना। और जो मॉडर्न फ्यूज है बेसिकली दे आर कॉल्ड एज सर्किट ब्रेकर्स, उसमें ये होता है कि वो मेल्ट नहीं होते, ठीक है ना। सर्किट ब्रेकर्स और फ्यूज में फर्क यही है कि वो मेल्ट नहीं होते, उसमें होता है कि ट्रिप हो जाता है आपको, ठीक है ना, ट्रिप हो जाता है एज सून एज कि आपकी एक सर्टेन वैल्यू से अगर एक्सीड करता है ना करंट, तो फिर आपका जो है ना सर्किट ब्रेकर जो है ना ट्रिप कर जाता है, जिससे फिर आपका सर्किट ब्रेक हो जाता है, करंट फ्लो नहीं होता। वंस फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक्सेसिव करंट फ्लो हो रहा है, आप उसको रेक्टिफाई कर लें, उसके बाद दोबारा आप उसको ऊपर कर दें, तो फिर करंट आपका एज नॉर्मल फ्लो होता है, ठीक है ना। अच्छा, एनीवेज, तो अब ये है कि दिस हैपेंस। अच्छा, जो आपका 3 पिन प्लग होता है, देखो वैसे तो अगर आपका 2 पिन प्लग, वैसे तो आपका एक यू हैव अ पेयर ऑफ वायर्स इन अ प्लग, दो दो ही वायर्स होते हैं, पेयर ऑफ वायर्स होते हैं, एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर। लाइव वायर से आपका करंट फ्लो होता है, ठीक है ना, इनटू द अप्लायंस, और न्यूट्रल वायर होता है बेसिकली कि वो सर्किट को कंप्लीट करता है, ठीक है ना। जब वो वापस व्हेन इट फ्लोज बैक टू द मेंस मेन सप्लाई, जब वो वापस फ्लो बैक करता है मेन सप्लाई, तो दैट इज थ्रू न्यूट्रल वायर। लेकिन जो करंट आपका फ्लो करता है ना वो लाइव वायर के थ्रू करता है, ठीक है ना। अच्छा, जो 3 पिन प्लग होता है उसमें बेसिकली आपके पास एक और वायर होता है जिसे हम अर्थिंग वायर कहते हैं। अच्छा, अर्थिंग वायर का क्या सीन है भाई? आपने सुना होगा कि हम अर्थिंग कर देते हैं डिवाइसेस की, अप्लायंसेस की अर्थिंग कर देते हैं, ठीक है ना। हम अर्थिंग करते हैं अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की। अब वो क्या होती है अर्थिंग, मैं देखें आपको एक चीज़ बताता हूँ। लेट सपोज पहले क्या हुआ करता था कि जो आपके सीपीयूज होते थे ना, अच्छा जस्ट अ सेकेंड, आप वेट करें ज़रा, अजान कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपसे कंटिन्यू करता हूँ बात करना, वेट कर लें ज़रा। अच्छा, पहले आपको याद होगा
हानि के और बच्चे उसमें ये होता था कि जो आपके सीपीयूज होते थे ना, जो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता था उसमें जो सीपीयूज होते थे उनमें व्हेन यू यूज टू टच, अगर वो मेटल केसिंग होती थी तो जब आप उसको टच करते थे ना यू यूज रिसीव अ शॉक, आपको शॉक रिसीव होता था। तो फिर क्या हो, अभी अब तो खैर नहीं होती, मोस्टली फाइबर केसिंग होती है, तो अब तो खैर कार्बन फाइबर केसिंग होती है, तो अब तो खैर शॉक नहीं रिसीव होता, बट पहले मेटल केसिंग होती थी, अभी भी होते हैं। एनीवेज, तो अब होता ये है कि मेटल केसिंग में क्या होता है, मेटल केसिंग में कि मेटल केसिंग को टच करने से आपको शॉक क्यों लग रहा है, तो मेटल केसिंग हो जाती थी चार्ज। ऑल्दो मेटल केसिंग के थ्रू करंट नहीं फ्लो कर रहा, करंट तो अंदर, वायर्स तो उसके अंदर है ना, केसिंग के अंदर है, उनमें से करंट फ्लो कर रहा है। अलग अलग कंपोनेंट्स लगे हुए हैं आपके, रोम लगी हुई है, रैम लगी है, मदरबोर्ड, जो भी कंपोनेंट्स आपके लगे हुए हैं उनमें जो वायर्स हैं उसमें से करंट फ्लो हो रहा है बहरहाल। लेकिन ये कि करंट चूँकि आपका कंटिन्यूसली, जब करंट जब आपका फ्लो हो रहा होता है कंटिन्यूसली, उससे क्या होता है कि अब मेटल जो है, मेटल केसिंग, मेटल इज अ कंडक्टर, उसकी वजह से क्या होता है कि इट गेट्स चार्ज, ठीक है ना। और अच्छा, अब चार्ज होने की वजह से क्या होता है, व्हाट हैपेंस, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। जो मेटल्स होते हैं, अगर आपकी नॉलेज है केमिस्ट्री की, तो मेटल्स ऑलवेज बिकम पॉजिटिवली चार्ज, अगर वो चार्ज होते भी हैं किसी वजह से। और देखो, जो हमने सीखा था ना कि फ्रिक्शन मेथड से हम चार्ज करते हैं, वो तो इंसुलेटर्स को करते हैं। इंसुलेटर्स, अगर मैं ऐसे ये जो मेटल केसिंग है इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूं प्लास्टिक केसिंग से या फाइबर, कार्बन फाइबर केसिंग से, तो फिर वो चार्ज नहीं होगा। जो आपके इंसुलेटर्स होते हैं वो सिर्फ फ्रिक्शन मेथड से ही चार्ज हो सकते हैं। अदरवाइज आपका जो है करंट फ्लो हो रहा हो, जिसकी वजह से अंदर करंट फ्लो हो रहा हो, जिससे आपके अराउंड मेटल केसिंग चार्ज हो जाएगी। मेटल्स ही इस तरीके से चार्ज होते हैं, कंडक्टर्स जो होते हैं। तो अब मेटल कंडक्टर है, एंड रिमेंबर कि आपको मेटल्स जो होते हैं, जब भी whenever they get charged they get positively charged anyways। अब क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हो गए, आपने उन पर हाथ लगाया, जब आप हाथ लगाएंगे ना तो क्या होगा कि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई ना, पॉजिटिवली चार्ज क्या होने का क्या मतलब है, पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने का मतलब है कि फिर इन दैट केस आप जब टच करेंगे तो आपकी बॉडी भी कंडक्टर है, तो इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज दैट मेटल केसिंग, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से फ्लो करेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जो है ना फिर क्या करेंगे, अर्थ से फ्लो करेंगे। आपके इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से फ्लो करेंगे टू न्यूट्रलाइज, और जाहिर सी बातें करेंगे तो आपकी बॉडी के थ्रू, ठीक है ना। और इनफैक्ट अगर आप जैसे स्लीपर्स नहीं पहने होते ना, तो स्लीपर्स क्या है, स्लीपर्स तो आप दे आर मेड ऑफ इंसुलेटर, दे मेड आउट ऑफ रबर, तो वो तो एक इंसुलेटर है, पॉलीमर है बहरहाल। तो इन दैट केस तब तो ठीक है, एक प्रोटेक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर आप जो है यू आर नॉट वेयरिंग स्लीपर्स and you are in direct contact with the ground, तो in that case फिर you will receive a shock, अगर आपकी metal casing charge है, क्योंकि in that case फिर आपके जो है ना ग्राउंड से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे थ्रू योर बॉडी एंड ऑन टू द मेटल केसिंग, तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू अ शॉक। तो ये बेसिकली एक सिंपल फिजिक्स है बिहाइंड, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई हमें शॉक लग रहा है, क्यों लग रहा है, तो यू कैन एक्सप्लेन कि ये दिस इज वेरी सिंपल फिजिक्स। अच्छा, अब होता ये है कि in order to avoid any such shocks, और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक सीपीयू जिसकी मेटल केसिंग है उसमें तो खैर इतना करंट आपका फ्लो कर ही भी नहीं रहा, समझ रहे हैं। आपका जो है ना ये करंट तो इतना फ्लो कर भी नहीं रहा। ठीक है ना, मतलब अगर मैं सीपीयू की बात करूं,
मैं सीपीयू की बात करूँ ना, तो सीपीयू जो है आपका, उसमें तो इतना अंदर, मतलब उसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो इतना करंट ड्रॉ करते भी नहीं है, उसमें ओवरऑल कोई इतना करंट फ्लो नहीं करता। तो आपकी मेटल केसिंग इतनी चार्ज नहीं होती, उसके अगर वो चार्ज हो भी जाती है तो आपका जो शॉक रिसीव होता है दैट इज़ वेरी माइनर, वो तो कुछ इतना है भी नहीं, वो फेटल शॉक नहीं होता वो। लेकिन आपके जो और अप्लायंसेज हैं, जैसे आपका जो है वो जो है कोई भी, अगर कोई और अप्लायंसेज जिसकी मेटल बॉडी होती है, ठीक है ना, फ्रिज तो कोई कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी ऐसी पार्ट ऑफ एन अप्लायंस, ज़रूरी नहीं है कि आपकी, ज़रूरी नहीं है कि पूरी बॉडी की जो है, पूरी बॉडी जो अप्लायंस की पूरी बॉडी है वो दैट इज़ मेड आउट ऑफ मेटल, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा तो खैर नहीं होता। लेकिन ये है कि अगर उसका कोई हिस्सा भी जो कि मेटेलिक है एंड इफ इट गेट्स चार्ज, और अगर आप उसको टच करते हैं तो अप्लायंसेस लाइक जैसे रेफ्रिजरेटर है, माइक्रोवेव ओवन है, या एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक मोटर, तो इसमें जो करंट आपके फ्लो हो रहे होते हैं ना, उनकी मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होती है। तो इन दैट केस अगर आपको शॉक रिसीव होता है ना, इट कुड बी फेटल एज वेल। एनीवेज, तो उसको अवॉइड करने के लिए ऑल सच अप्लायंसेस कम विद अ 3 पिन प्लग। मतलब इन अप्लायंसेस का जो है ना प्लग आपका 3 पिन ही यूज होता है, 2 पिन प्लग आपका नहीं यूज होता, जिसमें सिर्फ लाइव वायर या न्यूट्रल वायर हो रहा हो, उसमें 3 पिन प्लग यूज होता है। और इसमें ऑटोमेटिक ये 3 पिन प्लग का मतलब ये है कि इसमें अर्थ वायर ऑलरेडी है। दैट मीन्स कि जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये आपका जो अप्लायंस है ये अर्थ हो जाएगा। अर्थ होने का क्या मतलब होता है? अर्थ का क्या मतलब होता है? अर्थ का मतलब ये होता है कि ये वायर बेसिकली कनेक्ट करेगा आपके इस अप्लायंस को विद द अर्थ। ये आपका जो है वायर कनेक्ट करेगा अप्लायंस को विद द अर्थ, सो दैट के इनके, और ये जो वायर होता है ना, ये ऐसा वायर होता है, इसमें इट ऑफर्स ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस। तो जिससे ये होता है कि अगर इन केस आपके जो है जो अप्लायंस है, अगर उसकी बॉडी का कुछ हिस्सा अंदर का एक्सपोज भी हुआ है या कोई मेटल पार्ट है वो चार्ज हुआ है, अगर आप उसको टच करते भी हैं तो आपको शॉक रिसीव नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि आपका जो है करंट जो है, इन द केस अगर आप टच करते हैं तो फिर वो आपके थ्रू नहीं फ्लो करेगा, इट इज गोइंग टू फ्लो थ्रू द अर्थ वायर। फिर वो अर्थ वायर के थ्रू फ्लो करेगा, क्योंकि अर्थ वायर ऑफर्स ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस। आपकी बॉडी तो फिर भी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करती है, अर्थ वायर कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, ऑलमोस्ट निग्लेजिबल। तो देन द करंट विल फ्लो थ्रू इट। और ये आप काम सीपीयू के साथ भी कर सकते हैं कि सीपीयू में आप एक्सटर्नली एक वायर लें, उसको सीपीयू की बॉडी से, जो उसके अंदर पोर्स होते हैं ना, उसमें आप उससे उसके अराउंड उसको लपेट दें वायर को, और दूसरा वायर जो है ना आप उसको हैंग कर दें, जो कि आपका मतलब टच हो रहा हो विद द ग्राउंड। बस दैट्स इट, आपकी अर्थिंग हो गई। तो इन केस अगर आपका मेटल, इन केस अगर आपकी मेटल बॉडी, इन केस अगर आपकी इन केस अगर आपकी मेटल बॉडी इन केस अगर आपकी मेटल बॉडी चार्ज भी हुई तो इट विल ऑटोमेटिकली गेट न्यूट्रलाइज, मतलब देयर एंड देन, क्योंकि ऑलरेडी अर्थ से कनेक्टेड है ना बॉडी। अगर इन केस वो चार्ज हो भी गई तो आपके जो है वो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से फ्लो करेंगे थ्रू द अर्थ वायर ऑन टू द मेटल बॉडी, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। और फिर अगर आप टच करते भी हैं तो यू वॉन्ट रिसीव अ शॉक, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सी फिजिक्स है, आई थॉट कि ये आपको पता होनी चाहिए। सो लेट्स गो अहेड क्विकली। सो देन कुछ सेफ्टी फीचर्स जो कि विच आर पार्ट ऑफ, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो उसके देर आर सर्टेन सेफ्टी फीचर्स विच आर पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। उसमें होती है इंसुलेशन, ऑल मेन वायर्स, जितने भी आपके वायर्स हैं कैरिंग करंट, उनमें आपकी 2 लेयर्स ऑफ इंसुलेशन होती है, डबल इंसुलेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। और देन some appliances are double insulated as well as all their wiring being insulated. The outer casing of the appliance is also made of an insulation. अच्छा, एक होता है जैसे कि ये प्लग है ना, इस प्लग के अंदर जो वायर्स हैं उनकी अपनी एक इंसुलेशन है, और उस इंसुलेशन के अंदर लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है और अर्थ वायर है। और एक इस प्लग की आउटर केसिंग है, दैट इज ऑल्सो मेड आउट ऑफ अ इंसुलेटर। तो एक तरीके से आपकी ये कहलाएगी डबल इंसुलेशन हुई। Appliances with a metal outer casing
यानी वो अप्लायंसेज जिनकी आउटर केसिंग, बाहर की केसिंग मेटेलिक होती है, जैसे मैंने आपको सीपीयू का एग्जांपल दी, माइक्रोवेव ओवन की भी होती है, दैट appliances with a metal outer casing that the user might touch must be earth, उसको अर्थ किया जाता है। अर्थ आप जो है ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक 3 पिन प्लग यूज कर लें, और अदरवाइज अगर उसमें अर्थ वायर नहीं है, इंटरनली अगर अर्थ वायर कनेक्टेड नहीं है, तो फिर आप एक्सटर्नली फिर अर्थ वायर कनेक्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको सीपीयू केस में बताया। लेकिन ये जो आपके इलेक्ट्रिक आयरन्स होती हैं, तो इनमें तो खैर होता है 3 पिन, इसमें तो आपके 3 वायर्स होते हैं, मतलब इंटरनली आपका अर्थ वायर होता है, ठीक है ना। द अर्थ वायर ensures that the outer casing is held at 0 volt, कोई चार्ज ना हो, and provides a very low resistance path for current in the event of a fault in which the live wire touches the casing. This means that the fault current will be very large and cause a fuse to blow immediately, disconnecting the live supply. अच्छा, ये एक और पॉसिबिलिटी होती है, वो ये होता है कि अगर आपका जो है एक और पॉसिबिलिटी क्या होती है, एक और पॉसिबिलिटी होती है बच्चों के आपका जो वायर है उसके बाहर इंसुलेशन है ना, जो आपको बाहर से दिखती है वो तो इंसुलेशन है, अंदर वायर होता है ना, अगर वो इंसुलेशन ब्रेक हो गई और आपका लाइव वायर एक्सपोज हो गया जो करंट कैरी कर रहा है, और वो लाइव वायर आपकी बाहर की जो मेटेलिक केसिंग है अप्लायंस की उसके साथ इन कांटेक्ट आ गया, तो पूरी केसिंग में फिर आपका करंट फ्लो होगा, दैट कुड बी फेटल। तो इन दैट केस फिर ये आपका जो अर्थ वायर है ना, दिस हेल्प्स टू ऑफर अ वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर करंट टू फ्लो थ्रू इट ना, ताकि फिर आपकी जो है ना वो बॉडी जो है वो डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है ना। Fuses are fitted in plugs and in the consumer unit next to the electricity meter. Cartridge fuses are ceramic, heat-proof tubes containing a wire designed to melt when a specific current size is exceeded, thereby cutting off the life supply. Fuses have to be replaced when they are blown. ये तो खैर मैंने आपको बता दिया। Circuit breakers are modern day fuses कह लें. They are now used in domestic consumer units rather than fuse wire or cartridge fuses. They perform the same job as fuses, breaking the live connection when a specified current is exceeded. Circuit breakers are usually operated magnetically. खैर, we are not interested in कि आपके circuit breakers जो हैं उनकी how do they work. मैं ये लेक्चर अपलोड करूँगा ना यूट्यूब पे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक ऑफ द वर्किंग ऑफ दीज, ये जो अर्थ वायर किस तरीके से वर्क करता है अगर ये इंस्टॉल्ड हो, और एनिमेशन ऑफ अ प्लग जिस जो कि शो कर रही हो इंस्टॉलेशन, फ्यूजेस कैसे वर्क करते हैं, सर्किट ब्रेकर कैसे वर्क करते हैं, इनकी एनिमेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं, मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, जस्ट फॉर योर नॉलेज। मतलब पता होना चाहिए एक विजुअल, यू मस्ट you know when you are learning physics, you must go through the visuals, ठीक है ना, मतलब you must see with your eyes के how do a certain phenomena works, कि कोई भी certain device हो कैसे work करती है, तो आई एम गोना हेल्प यू आउट इन दैट, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा, दैट जस्ट टू रिटेन द इन्फॉर्मेशन जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, उसको रिटेन करने के लिए अगर आप थोड़ा विजुअलाइज कर लेंगे ना बाय लुकिंग एट एनिमेशन, तो आपको याद रहेगी चीज़ें। अच्छा, इसमें टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर्स भी होते हैं, इसमें आपके रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर्स भी होते हैं, इंडिविजुअल सर्किट ब्रेकर्स भी होते हैं। बहरहाल वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन के व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है ना, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द ऑपरेशन ऑफ बोथ ऑफ देम, सो या वो छोड़ देते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाएं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, मैं आपको ना कुछ यहाँ पे अभी लिख भी देता हूँ। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कस करने से पहले मैं आप पे कुछ आप लोगों के लिए ना मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ लिख देता हूँ, वो भी लिख लें आपकी नॉलेज के लिए।
ये मैं इधर लिख रहा हूँ। अच्छा, इसमें इधर लिख देता हूँ एलेक्स। हेडिंग है आपकी टाइप्स ऑफ वायर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता तो दी है, लेकिन इनके हवाले से थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं चाहूँगा कि आपके साथ शेयर करूँ, जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये है कि फर्स्ट वन इज़ लाइव वायर। और लाइव वायर, हाई पोटेंशियल वायर। हाई पोटेंशियल वायर, ठीक है। और इसका जो कलर होता है ना, वो होता है रेड होता है या फिर ब्राउन होता है, ठीक होगी बात। और कैरीज करंट, ये करंट कैरी करता है। कैरीज करंट थ्रू द सर्किट फ्रॉम फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना बच्चों, दूसरा जो होता है ना वो आपका न्यूट्रल वायर होता है। न्यूट्रल वायर की क्या प्रॉपर्टीज हैं? लो पोटेंशियल वायर, तो हाई पोटेंशियल होता है, ये लो पोटेंशियल होता है। और कलर इसका क्या होता है? ब्लू। ब्लू भी होता है, समटाइम्स ब्लैक भी होता है। और ये आपको करता है कैरीज करंट बैक टू सोर्स, यानी आपका करंट फ्लो हुआ सब सोर्स से, सप्लाई से, थ्रू लाइव वायर। वो जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं सर्किट में, उनसे उन उनके थ्रू आपका फ्लो हुआ, एनर्जी गिव अप करी, गिव अप करने के बाद जब वो फाइनली दूसरे टर्मिनल में, यानी जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें फ्लो करने के लिए, फिर वो न्यूट्रल वायर के थ्रू फ्लो करता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यू हैव अर्थ वायर। अर्थ वायर का क्या सीन है? ये आपका होता ही नहीं है, इसको हम कहेंगे नेग्लेजिबल पोटेंशियल होती है, यानी जीरो पोटेंशियल कहना है, जीरो पोटेंशियल वायर। फिर इसका कलर ग्रीन भी होता है, समटाइम्स येलो भी होता है। मतलब अगर ये प्लग के अंदर सॉल्ड होता है तो फिर ये इससे कलर, और मोस्टली कंप्लीट ग्रीन नहीं होता, ग्रीन स्ट्राइप्स या येलो स्ट्राइप्स होती हैं वायर में, ठीक है। और इसका क्या पर्पज होता है भाई? सेफ्टी। वायर दैट इज कनेक्टेड
between the metal casing and the ground. ठीक है, और एक और पर्पस भी लिख लें कि इट डायरेक्ट्स करंट it directs excess current or charge to ground in order to protect the user. ठीक हो ये बात? चलो, थोड़ी सी डायग्राम भी बना दूंगा अभी। फिलहाल मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करनी है ना, वो कर दूं पहले। फिर है फ्यूज। फ्यूज क्या है भाई? फ्यूज के बारे में, एन electronic component that melts a current and a current greater than the rated value passes through it. अच्छा, इसको हमेशा याद रखिएगा, लाइव वायर पे अटैच किया जाता है, ठीक है ना? जब आपका करंट सप्लाई से सोर्स से फ्लो हो रहा होता है, जिस वायर के थ्रू लाइव वायर होता है, उसी पे फ्यूज कनेक्ट किया जाता है, न्यूट्रल पे नहीं किया जाता। न्यूट्रल तो बेसिकली जब आपका करंट फ्लो कर जाता है ना सर्किट से, और उसमें जो कंपोनेंट्स लगे उससे फ्लो जब कर जाता है, तो जब वो बैक, जब वो व्हेन इट इज फ्लोइंग बैक टू द सोर्स, फिर वो न्यूट्रल वायर में से करता है। तो ऑफ कोर्स एट दैट टाइम जो आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं, वो एनर्जी नहीं कैरी कर रहे होते, तो उस वायर पे आपका जो है फ्यूज नहीं कनेक्ट होता। फ्यूज कनेक्ट होता है जब आपका मेन सप्लाई से जब आपका करंट फ्लो होता है थ्रू द लाइव वायर, उस पर कनेक्ट होता है। इट इज ऑलवेज attached on the live wire. It is rated in amperes. इसकी जो रेटिंग होती है वो एम्पेयर्स में होती है, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज रेटेड इन एम्पेयर्स। ठीक है,
उसके बाद क्या है, अच्छा अब मैं यहाँ पे ना आपको एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब मोटर of power rating 500 watts operates normally on 220 volts, ठीक है ना। Determine the current required for the motor and suggest an ampere rating. Ampere rating for the fuse. ठीक है ना। तो कैलकुलेट करते हैं। 500 इसको हम 200 वोल्ट्स कर लेते हैं यार। आया आपका आ गया 2.5 एम्पेयर। तो इसके लिए जो आपकी फ्यूज यूज होगा उसकी जो रेटिंग होनी चाहिए वो प्रॉब्ली 3 एम्पेयर या 4 एम्पेयर होनी चाहिए। दोनों सही हैं। 3 एम्पेयर रेटिंग वाला फ्यूज और 4 एम्पेयर रेटिंग वाला फ्यूज दोनों ही सही हैं, दोनों ही वर्क करेंगे। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो है ये एट दिस वैल्यू ऑफ करंट अगर आपका अप्लायंस जो है वो नॉर्मल वर्क कर रहा है तो फिर जो क्लोजेस्ट आपका जो रेटिंग है फ्यूज की वो है 3 एम्पेयर्स। और 3 एम्पेयर रेटिंग वाला फ्यूज आप इंस्टॉल कर सकते हैं। 4 एम्पेयर रेटिंग वाला भी चलेगा। यानी कि अगर 2.5 से 1.5 एम्पेयर एक्सीड भी करता है यानी 4 एम्पेयर भी करंट फ्लो करता है फाइन। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा ना, जैसे कि अगर आपने यहाँ 8 एम्पेयर्स वाला फ्यूज इंस्टॉल कर दिया तो अब यहाँ पे 2.5 एम्पेयर्स से कितना ज़्यादा एक्सीड कर सकता है 8 एम्पेयर्स यानी कि तकरीबन 5.5 एम्पेयर्स एक्सीड कर सकता है विच इज़ अ वेरी लार्ज करंट। जो कि अगर 2.5 एम्पेयर से एक्सीड, क्योंकि आपका फ्यूज़ जब तक अगर 8 एम्पेयर्स वाली रेटिंग वाला 8 एम्पेयर्स रेटिंग वाला फ्यूज़ अगर आप इंस्टॉल कर देते हैं इसका मतलब ये कि 8 एम्पेयर्स तक का जब करंट फ्लो होगा। लेकिन बट दैट इज समथिंग यू डोंट वांट ना। 2.5 से ऊपर आप चाहेंगे कि बस 4 एम्पेयर तक अगर फ्लो हो तो भी चलो चलेगा। लेकिन 2.5 से ऊपर अगर आप 5 एम्पेयर का करंट फ्लो कर जाता है तो अगर आप 8 एम्पेयर्स वाला 8 एम्पेयर्स रीडिंग वाला 8 एम्पेयर्स रेटिंग वाला फ्यूज लगाए थे दैट मीन्स के 2.5 से अबव 8 एम्पेयर्स तक यानी फ्लो आपका फ्यूज के थ्रू होगा तब जाके फ्यूज बर्न होगा। और 8 एम्पेयर्स करंट अगर आपका फ्लो हो जाता है 2.5 पे तो नॉर्मली ऑपरेट कर रहा है, अगर वो एक्सीड होते 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 8 एम्पेयर्स तक चला गया या चलो 7 एम्पेयर्स तक भी चला गया so that could be fatal for the user as well as it could be it could destroy the appliance as well.
that appliance may catch a fire that could be fatal for the user as well as it could destroy the appliance. फारिग कर देगा, appliance भी फारिग कर देगा. You don't want. You want कि आपका appliance safe रहे even अगर आपका current exceed भी करता है. तो अगर वो current exceed करता है तो ये जो फ्यूज जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं इसकी रेटिंग आपकी जो है जो नॉर्मल करंट उससे फ्लो कर रहा है उससे करीब करीब हो, बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस ना हो. ठीक होगी बात. अच्छा, फिर उसके बाद है आपका फिर कुछ बातें और वो ये कि व्हेन लाइव वायर comes in contact with the neutral wire, short circuit occurs. ठीक है ना. करंट पासेस थ्रू. अच्छा, फिर उससे क्या होता है अगर लाइव वायर आपका इन कांटेक्ट आ जाएगा ना न्यूट्रल वायर के, तो होगा ये कि फिर आपका जो करंट है वो न्यूट्रल वायर के थ्रू फ्लो करेगा. दैट मीन्स कि फिर वो जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, जो आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसमें उसके अंदर यानी कि जो भी आपका अप्लायंस है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है फिर उसमें से नहीं फ्लो कर रहा, वो उनके थ्रू नहीं फ्लो करेगा. समझ आई बात ही नहीं आई. So current passes through the low resistance route. And its magnitude increases. The fuse melts as current crosses. The fuse melts as the current passes. नहीं, as the current crosses, exceeds कर लें, current exceeds the rated value. And circuit breaks. The fuse was not attached. High current will create. जब फ्यूज अटैच हुआ हुआ, करंट एक्सेसिव फ्लो कर रहा है, लाइव वायर न्यूट्रल वायर आ गए आपका इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो अब आपका करंट जो है वो लो रेजिस्टेंस वायर यानी न्यूट्रल वायर के थ्रू फ्लो कर रहा है. तो अगर फ्यूज़ आपका नहीं वो हुआ हुआ अटैच, अगर हुआ हुआ है तो ठीक है, फिर तो वो यू नो इमीडिएटली फिर वो मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है. बट अगर फ्यूज़ नहीं हुआ हुआ अटैच, सर्किट ब्रेकर नहीं हुआ हुआ अटैच, तो उससे क्या होगा, हाई करंट will create excessive heating. Excessive heating and wires will catch fire. ठीक हो ये बात. What happens क्या है जब आपका शॉर्ट सर्किट होता है, ये मैं बेसिकली लिख रहा हूँ, बल्कि मैं इसकी हेडिंग डाल देता हूँ ना.
बल्कि मैं एक काम करता हूँ, क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, पर कोई बात नहीं, होने दो। मैंने आज इसको इंशाल्लाह इसको फिनिश अप करना है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा बोर हो रहे हैं तो प्लीज़ होते रहिए, और आप लोगों के पास कोई हल नहीं है एक्सेप्ट फॉर कि आप लोग बोर हों, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, लिख देता हूँ शॉर्ट सर्किट। ठीक है ना। अच्छा, मैं कुछ डायग्राम्स भी बना देता हूँ। एक तो मैंने ये बनानी है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, और ये आपका ठीक है ना, अर्थ वायर कनेक्टेड टू दी अर्थ। ठीक है ना, ये आपकी मोटर होगी, और ये आपकी मेटल केसिंग है। ठीक होगी बात। फिर मैं आपको ज़रा फ्यूज़ के हवाले से, अच्छा फ्यूज़ का जो है मैंने आपको सिंबल बता दिया था, वैसे याद पड़ता है, ये रहा फ्यूज़। कहाँ है फ्यूज़? नहीं बताया था फ्यूज़ का। चलो मैं इंक्लूड कर देता हूँ यहाँ पे, अब इंक्लूड कर देता हूँ। फ्यूज़ का जो इलेक्ट्रिकल जो सिंबल है ना, जो कि सर्किट डायग्राम में होता है, वही है ये फ्यूज़ का, फ्यूज़ या सर्किट ब्रेकर। ठीक होगी बात, उसके लिए यूज़ होता है। ये मैंने इंक्लूड कर दिया है आपकी लिस्ट ऑफ सिंबल्स में, सिंबल्स, लिस्ट ऑफ सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मैंने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, कॉपी, फिर पेस्ट करते हैं। बल्कि अगले पेज पे बनाए, इतनी मेहनत क्या करना। ताकि आप लोगों को भी सही से दिख जाए। ठीक है बच्चा पार्टी। दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, या फिर आप
शॉर्ट सर्किट लगेगा। इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में मैं लिख देता हूँ जल्दी से, यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक कब लगता है? तो चपाटी इलेक्ट्रिक शॉक का आप लोगों को मैं बताया था कि when live wire comes in contact with the metal casing, current flows through the metal casing and down and if the user touches it, it is going to flow through user's body into the earth. The user will receive electric shock. ठीक है? If the earth wire is connected. अच्छा बच्चों यार, मैंने सॉरी आप लोगों के मैसेजेस नहीं पढ़े। इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? जल्दी से बता दें मुझे, बस मैं एंड कर रहा हूँ लाइक इन 5-7 मिनट्स। एवरीथिंग इज क्लियर? जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी आप लोग सारे, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, so the earth wire is connected, current in the metal casing current from metal casing flows through it into the earth, into the earth. When current flows through the earth wire, its magnitude increases. As earth wire has low resistance. डायग्राम कंप्लीट में कर देता हूँ। होपफुली यहाँ तक तो आप लोगों सबको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई नथिंग डिफिकल्ट इन इट। अच्छा, ये आपकी मैं बना रहा हूँ फॉर शॉर्ट सर्किट।
ये बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक शॉक। अच्छा खैर, 12 शॉर्ट सर्किट का क्या है यार, ये जो है ना सीन कुछ ऐसा है, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। नाउ द करंट विल फ्लो लाइक दिस, और मोटर में जाएगा ही नहीं, क्योंकि मोटर की जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ये जो आपके इन कांटेक्ट आए लाइव और न्यूट्रल वायर, ये जो पाथ है दैट इज लो रेजिस्टेंस पाथ कंपेयर टू कि अगर आपका करंट मोटर के थ्रू फ्लो करता है। इधर तो रेजिस्टेंस है नहीं, तो इट्स गोइंग टू फ्लो थ्रू इट, और जब ये फ्लो करेगा यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है तो ज़्यादा मैग्नीट्यूड में फ्लो करेगा। समझ आई बात नहीं आई? सो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे लो रेजिस्टेंस पाथ, हाई रेजिस्टेंस, मोटर की हाई रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, ये बेसिकली ये काम हो रहा होता है, मैंने आपको समझा दिया। अब आप जाए इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक कब लगता है भाई? जब वायर लाइव वायर आ जाए आपका, मेटल केसिंग के साथ कांटेक्ट में आ जाए। कोई भी वजह हो सकती है, इंसुलेशन आपकी डैमेज हो गई, आ गया इन कांटेक्ट, थोड़ी सी आपका अप्लायंस हिला उसकी वजह से आ गया, बहरहाल कोई नट लूज हो गया, कोई भी वजह हो सकती है आपकी। तो अब क्या होगा कि आपका करंट फ्लो होगा, मैं इसको ग्रीन से बना देता हूँ। अब आपका करंट फ्लो होगा और केसिंग के थ्रू होगा, ठीक है ना। अब आपका कहाँ करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है? केसिंग के थ्रू हो रहा है। और फिर अगर आपका अर्थ वायर कनेक्टेड है तो फिर वो अर्थ के थ्रू फ्लो होगा इनटू दी ग्राउंड, अर्थ वायर के थ्रू फ्लो होगा इनटू दी अर्थ, और व्हाटएवर यू से ग्राउंड या अर्थ जो भी कहें, ठीक है। और अगर ये अर्थ वायर कनेक्टेड नहीं है तो फिर ये केसिंग के थ्रू फ्लो होता रहेगा ऐसे। फिर अगर आप टच करेंगे तो फिर आपकी बॉडी के थ्रू फ्लो होगा इनटू दी अर्थ, एंड उसकी वजह से फिर यू विल गोइंग टू रिसीव इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है ना, ये बात समझ आ गई? Is everything clear up till now? That is great. Now there is one last thing, और वो basically जो है ना, that is all related to static electricity, जो कि बहुत easy है। I want you to have a look at this, कि जो static electricity उसके क्या uses हैं। बहरहाल ये जितने भी uses हैं, how static electricity is used, किस तरीके से आपके ये devices work करते हैं यूजिंग द फिनोमेना ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये इन पर बेस्ड एनिमेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं। तो मैं इंशाल्लाह ये इनकी भी डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दूंगा, यूट्यूब चैनल पे लेक्चर्स अपलोड करूँगा ना, उसमें ये हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन पे हैं ये, मतलब आप समझ लें हैं। ठीक है ना, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक्त तो अपलोड नहीं है, लेकिन बस ये है, आप देख लें डिस्क्रिप्शन में जाके। तो ये इसकी वीडियोस हैं अवेलेबल, तो वो आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आप विजुलाइज हो जाए। ठीक है ना, अदरवाइज यू मे गो थ्रू दीज यूजेस। आपको पता होना चाहिए कि यूजेस क्या हैं, व्हाट डिवाइसेस आपका ये फिनोमेना ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है, और कैसे यूज़ होता है इसकी डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, बट ये कि यू जस्ट नीड टू हैव सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। तो इंकजेट प्रिंटर्स हैं, फोटोकॉपियर्स हैं, पेंट स्प्रेइंग है, और प्रेसिपिटेटर्स हैं। बेसिकली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चिमनीज कह लें आप, और इनमें आपकी ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। बहरहाल जब आप वीडियो से गो थ्रू करेंगे यू विल गेट अ गुड आइडिया कि इन ईच ऑफ दीज यूजेस, इन ईच ऑफ दीज डिवाइसेस आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जो फिनोमेना यूज़ हो रहा है वो कैसे यूज़ हो रहा है, एंड हाउ दीज आर वर्किंग। जो भी ये आपकी डिवाइसेस पर्पस सर्व कर रहे हैं, वो पर्पस कैसे सर्व हो रहा है यूजिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वो आप लोग देखिएगा। और प्रॉब्लम्स आपके जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिक शॉक्स हैं, फ्यूलिंग टैंकर्स एंड एयरक्राफ्ट, ठीक है ना, और कंप्यूटर चिप्स, हैंडलिंग माइक्रो प्रोसेसर्स एंड कंप्यूटर चिप्स।
आपके एयरक्राफ्ट में आपको एक इंटरेस्टिंग जगह बताता हूँ। एयरक्राफ्ट जो है ना, जो आपके जहाज़ होते हैं, तो वो जो जहाज़ हैं जब वो आपके फ्लाई कर रहे होते हैं, तो उस दौरान दे आर इन कांटेक्ट विद द एयर एंड हाई स्पीड पे फ्लाई करते हैं, जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। और एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो यूँ समझ लें कि व्हेन एयर एक्चुअली comes in contact with the body of the aircraft, या जिसे हम फ्यूसलेज भी कहते हैं एयरक्राफ्ट की बॉडी को, जब वो इन कांटेक्ट होती है, मुस्तकिल हो रही होती है फॉर आवर्स एंड आवर्स, सो देयरफॉर फ्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से जो है आपका चार्ज जो है ना वो बिल्डअप हो जाता है ऑन द बॉडी ऑफ द क्या होता है ऑन द बॉडी ऑफ क्या कहते हैं ऑन द बॉडी ऑफ द एयरक्राफ्ट, ठीक है ना। वो आपका बिल्डअप हो जाता है एंड अगेन होता यह है कि जब आपका एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो उसको फौरी फ्यूल नहीं किया जाता। ऐसा नहीं होता कि उसको बस आपने फ्यूल उसको फौरी फ्यूल कर दिया, अदरवाइज इज गोइंग टू एक्सप्लोड, क्योंकि जैसे ही क्योंकि आपकी पूरी बॉडी चार्ज है, सो देयर इज ऑलवेज अ हैजर्ड कि जो चार्ज है दैट मे नॉट फ्लो इनटू द, जो एक्सेसिव चार्ज बिल्ड हुआ है वो आपके फ्यूल टैंक के अंदर फ्लो ना कर जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, यू नो द फ्यूल में गेट बर्न और देयर इज अ चांस ऑफ एक्सप्लोजन। तो उसके लिए पहले आप फ्यूल मतलब फ्यूलिंग करने के लिए एयरक्राफ्ट की, उससे पहले ये स्टेप लिया जाता है कि उसको डिस्चार्ज किया जाता है, पूरी बॉडी को एयरक्राफ्ट की उसको अर्थ किया जाता है, ठीक है ना, उसको अर्थ किया जाता है ताकि पूरी बॉडी आपकी डिस्चार्ज हो, उसके बाद फिर फ्यूलिंग की जाती है, ठीक है ना। सो दैट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा ये जो आपकी लाइटनिंग होती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मानसून सीजन, दैट इज़ ऑल्सो फिनोमेना ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपका बहुत एक्सेसिव चार्ज जो आपका बिल्टअप हो जाता है ना इन इन क्या कहते हैं बादलों के अंदर, बादलों में जो एक्सेसिव चार्ज आपका बिल्डअप हो जाता है ना, वो बेसिकली फ्लो करता है फ्रॉम दी क्लाउड्स ऑन टू दी अर्थ एट अ वेरी हाई स्पीड। सो दैट इज़ वॉट यू ऑब्जर्व एज फिनोमेना ऑफ लाइटनिंग। बहरहाल तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वीडियोज, आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दैम सो दैट यू मे विजुअलाइज कि ओके दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग, ठीक है, दैट इज गोइंग टू गिव यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग। अदरवाइज यहाँ पे लिखा हुआ तो है, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया यूजेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, but I want you to have a visual understanding as well. All right, so that's it. Actually, we are left with discussing of questions related to this section, and we will now be in the next class discussing questions. Inshallah. Just a second. Let me stop.